ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ simran.waves ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਨਿਕਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਲਟਾ, ਉਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮਾਲਟਾ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द अपॉर्चुनिटी। ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਬੈਟਰ ਨਾਓ ਥੀਸ ਡੇਜ਼। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਸੋ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਬਟ ਸਟਿਲ ਥੋੜਾ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਪੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਰੈਪੂਟੇਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਪਲੱਸ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਰਕ ਵਿਦ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈਵ selected, that is a university consulting company. So university consulting company is Australia based company. So we are representing every country almost. We do have exclusivity for few colleges and universities in Australia. And we do have exclusivity in Malta as well, in Uzbekistan. We are having office, we are having Nepal office, we are having office in Mauritius. Now we are going to set up office there in Dubai as well. Right, so at present we do have 2 offices here in India, also in Hyderabad and in Chandigarh. ਓਕੇ। Yeah. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਲਟਾ ਦੀ, ਮਾਲਟਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਨਿਕਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾਲਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਾਲਟਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲਟਾ ਦਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਾਡੀ ਡੀਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਾਲਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਾਲਟਾ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸ਼ੈਨਗਨ, ਰਾਈਟ? So students can apply there even without IELTS as well. But the thing is, you need to select a good and genuine consultant for that. ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡ। ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਟਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਪਿਊਟਿਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਵਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 13 ਈਅਰ ਓਲਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ। ਵੈਰੀ ਰਿਪਿਊਟਿਡ, ਵੈਰੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਦੇਅਰ ਬੈਚਲਰ ਐਂਡ ਮਾਸਟਰਸ, very good courses. MSc is available, MBA is available, bachelor in business in available, IT का bachelor available है। There are lot of options for courses as well. Fees is very affordable. So interview student has to clear, right? So interview अगर मैं बात करूँ कॉलेज इंटरव्यू इज मस्ट। एम्बेसी का इंटरव्यू उन्हीं स्टूडेंट का आता है जिनकी फाइल एक अच्छे तरीके से नहीं लगी होती या उसमें मतलब रेस्ट ऑफ द थिंग मैं कहूँ कि 10% चांसेस है, 20% मतलब कि चांसेस है। जो आप जैसे ना बहुत सारे लोगों ने शैनिकन कंट्रीज का अलग अलग कंट्रीज का वीजा अप्लाई करना शुरू कर दिया था, बहुत सारी रिफ्यूजल्स भी आई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑफर लेटर ही नहीं मिलता।
हम्म, बट आपने एक चीज बोली कि आप क्वालिटी स्टूडेंट ही लोगे। बिल्कुल अगर क्वालिटी माल्टा स्टूडेंट चाहिए। में कम अप्लाई कर लोगे बट लोगे क्वालिटी स्टूडेंट। बिल्कुल सर। क्वालिटी स्टूडेंट कैसा होता है? क्वालिटी स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट कैन अप्लाई विदाउट आइल्स बट एटलीस्ट ही इज हैविंग अ लेवल ऑफ इंग्लिश इज मॉडरेट। वो इंग्लिश में थोड़ा बात कर सकता है, वो अपने आप समझा सकता है। उसका इंटरव्यू कि होता है कम से कॉलेज कम की वो तरफ से, कम से कम एयरपोर्ट पे इंटरव्यू। जाएगा तो बिल्कुल। ये ना हो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी उससे कुछ मांग रही है कॉलेज से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, बच्चे को पता ही नहीं होता। कि शैनिकन बहुत बार फ्लॉप इसलिए हो जाता है क्योंकि शैनिकन में जो कंसल्टेंट कंसल्ट कर रहा है वो जी। जैसा मर्जी स्टूडेंट उठा लेता है। मतलब आपका कहना ये है कि स्टूडेंट और इंग्लिश कंसल्टेंट लेवल। अगर बच्चे को ले रहा है बिल्कुल। तो कम से कम उसका लेवल चेक करे कि इसको इंग्लिश आती है, जी। वहां पे जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। जी। आपको मतलब क्वालिटी स्टूडेंट ही चाहिए। बिल्कुल क्वालिटी स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि स्टडी भी इंग्लिश है। माल्टा की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ पर हम्म। इंग्लिश में ही सारी स्टडी करवाई जाती है स्टूडेंट को। तो इंग्लिश में स्टडी करने के लिए स्टूडेंट को इंग्लिश आनी और समझनी भी चाहिए। तो इसलिए बिल्कुल हमें जो आइल्स का लेवल है उनका एटलीस्ट 5 आइल्स का लेवल होना चाहिए स्टूडेंट का मिनिमम, सो दैट के ही कैन स्पीक एंड ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, बिल्कुल बिल्कुल राइट। अच्छा स्टूडेंट ही चाहिए। बिल्कुल अच्छा स्टूडेंट चाहिए माल्टा के लिए हमें। और वीज़ा सक्सेस इसमें मैं हमारा जो आ रहा है आज की डेट में वो 80 to 90% तो वीज़ा सक्सेस आ रहा है। वी कैन शो यू द वीज़ास, वी कैन गिव यू द रेफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, यू कैन सी द स्टूडेंट्स लाइक जो वहाँ पर ऑलरेडी जा चुके हैं, स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारी कंपनी इस टाइम जैसे आप पंजाब हरियाणा में प्रमोट करना शुरू कर दिया माल्टा आपने, जी। तो इससे पहले कौन कौन सी अलग अलग स्टेट से बच्चे जाते हैं माल्टा स्टडी करने के लिए? सर मेरे पास तो अभी यूपी के स्टूडेंट भी जा रहे हैं मेरे ओके, मतलब पास। साउथ के आप बोल रहे मेरे थे कि पास साउथ के। हैदराबाद से बहुत क्लाइंट है, मेरे पास अहमदाबाद से क्लाइंट आ रहा है। हम्म। साउथ का बहुत अच्छा स्कोप है और बड़ा अच्छा स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास साउथ से भी। तो ओके। साउथ में हमारा ऑलरेडी हैदराबाद ऑफिस भी है, ओके। तो स्टूडेंट्स आर कनेक्टिंग देयर एज वेल। हम्म। तो माल्टा हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। इवन वी रिसेंटली गॉट वेरी गुड वीजास फॉर बांग्लादेश ऑल्सो। ओके, और कैसी कंट्री है माल्टा? अगर कंट्री के बारे में बात करें कि बच्चा बच्चा हमारा जा रहा है वहाँ पे, जैसे पंजाब के बच्चे की कनाडा ही प्रेफरेंस थी, जहाँ जी। ऑस्ट्रेलिया थी। अब चलो लोगों की प्रेफरेंस तो है कि वो शैनिकन किसी अच्छी कंट्री में चले जाए। जी। आपने कंट्री के बारे में रिसर्च तो की होगी, कंट्री कैसी है और फ्यूचर प्लान क्या होंगे बच्चे के अगर बच्चा माल्टा जाता है तो? 100% माल्टा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर स्टडी। एक तो बड़ी वेलकमिंग कंट्री है, मोर ओवर यहाँ पर कोई क्राइम रेट नहीं है इतना। दूसरी बात है कि इस कंट्री में अगर मैं बात करूँ तो टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी टूरिस्ट घूमने भी जॉब जाता है ऑप्शन ज्यादा माल्टा। होगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट कैन स्टडी, सॉरी स्टूडेंट कैन वर्क वाइल दे आर स्टडिंग, ठीक है। 20 आवर्स वर्किंग राइट्स भी इनको मिलते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फुल कोर्स देर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी टू स्टे बैक एंड वर्क देयर इन माल्टा, ओके। राइट। मोर ओवर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ये बहुत सपोर्ट करती है। जैसे अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल। उस कॉलेज में ये है कि अगर गेट क्वालिफाइड, गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है यहाँ पे सिमरन जी, ओके, और उस पॉलिसी के अंडर स्टूडेंट को 70% तक ट्यूशन फीस जो है वो रिफंड हो जाती है। अगर क्वालिटी अगर स्टूडेंट है तो क्वालिटी मतलब स्टूडेंट परसेंटेज है स्कॉलरशिप टाइप मिल जाता है बच्चे 100% स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसको रिफंड मिल जाता है, इवन को। ओके 70% ऑफ द ट्यूशन फीस, ओके ओके ठीक है। ओके। जैसे ही स्टूडेंट जो है उसको अपना स्टडी कंप्लीट करता है, वहाँ पे काम मिल जाता है उसको, वो अपना स्टार्ट कर लेता है। तो बिल्कुल। स्टूडेंट इज हैविंग राइट अंडर द गेट क्वालिफाइड, ठीक है। तो उसको जो है वो 70% तक अपनी फीस रिफंड करवा सकता है, गवर्नमेंट करती है, ओके ओके। राइट। तो अगर बच्चा माल्टा में एजुकेशन ले रहा है आज की डेट जी। में, तो उसके बाद जैसे ना बहुत सारे हमारे बच्चों को होता है कि हम जर्मन चले जाएं, पेरिस, स्पेन, अलग अलग जो कंट्री है शैनिकन का जो जी। पार्ट है। जी। अगर बच्चा यहाँ से स्टडी कंप्लीट करता है तो वो किसी भी कंट्री में मूव ऑन इजीली हो सकता है? बिल्कुल सर, इसका पार्ट ऑफ शैनिगन। शैनिगन में वो किसी भी कंट्री में जा सकता है। जो माल्टा में वो स्टडी कर रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये इंग्लिश में स्टडी करवा रहे हैं सारी, तो वो रिकॉग्नाइज्ड स्टडी है वर्ल्ड वाइड। तो अच्छे रिप्यूटेड कॉलेज से अब हम स्टडी करवा रहे हैं स्टूडेंट को, तो दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन एवरी कंट्री। तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, वो कहीं पे भी जा सकता है। इसके बाद उसको लगता है कि सपोज आईटी का स्टूडेंट है, उसने यहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो अपनी मास्टर्स जो है वो कंप्लीट जर्मन में करना चाहता है या किसी और शैनिगन कंट्री में करना चाहता है, तो दे आर मोस्ट वेलकम, वो कर सकते हैं, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर एक हम बच्चे की बात करें कि बच्चे का बजट, जैसे आफ्टर +2 बैचलर के लिए जा रहा है, आफ्टर बैचलर मास्टर्स के लिए जा रहा है, जी। तो नॉर्मल बच्चे का बजट अगर मान के चलें तो वो कितना होगा अगर माल्टा कोई बच्चा जाना चाहता है?
सर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बैचलर्स की बात करूं तो बैचलर में 6,000 यूरो फॉर 1 ईयर से फीस स्टार्ट हो जाती मतलब है। 6 से 6.5 लाख इंडियन रुपीस बैचलर के लिए। हाँ, वी कैन से लाइक सर 6,000 यूरो से लेके 7,000 यूरो के बीच में फीस वेरी करती है कोर्स टू कोर्स। कोर्स टू कोर्स, ओके। ठीक है, तो अच्छा कोर्स है, स्टूडेंट चूज कर, सपोज आईटी की थोड़ी महंगी है, बिजनेस मैनेजमेंट की 6100 है। ठीक है, तो ऐसे ही जो कोर्स चूज करते हैं उसके वेरिएशन, मतलब 7 से 8 लाख के बीच में मतलब मान स्टूडेंट के जा सकता है। ये मान सकते हैं कि अगर बच्चा थोड़ा लिविंग कॉस्ट भी साथ लेके जाता है, एयर टिकट, मतलब 10 लाख के अंदर अंदर बच्चे का बजट 10 है। लाख इज मोर देन इनफ। या तो और 10 लाख के मास्टर्स अंदर के में हो लिए? जाएगा। मास्टर्स के लिए बजट थोड़ा सा हाई रहता है, उसमें आप कह लीजिए 10 से 11 लाख के बीच में होगा। और यहाँ पे जो बैचलर डिग्री है वही 3 ईयर की है? हाँ, बैचलर 3 ईयर की है, जो मास्टर्स है वो 18 मंथ टू 2 ईयर की है। ओके ओके, मतलब जी 2 साल की मास्टर्स है, जी बैचलर है जो वो 3 साल की है। जी सर जी। और यहाँ पे जो एजुकेशन है वो इंग्लिश, प्रॉपर बिल्कुल इंग्लिश सर, होती है? जैसे प्रॉपर इंग्लिश यूरोप में में है। ना बहुत सारी कंट्रीज की ये प्रॉब्लम है लैंग्वेज की, एजुकेशन की। पहले वहां पे जाके लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद बच्चा स्टडी शुरू करता है। यहाँ पे सीधा ही अब बच्चा बैचलर इंग्लिश मास्टर्स। में ही स्टडी करेगा स्टूडेंट, देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर इन माल्टा। ओके ओके ओके। तो आपने जो इसमें एजुकेशन गैप जो आपने बताया कि 5 ईयर का एजुकेशन गैप हो जाता है अक्सर, टिल 5 ईयर एजुकेशन गैप चल जाता है, और उसमें उसमें आपको डिपेंड करता है जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी 100% कि कि आपने व्हाट ही आफ्टर हैज स्टडी डन, क्या क्या व्हाट ही किया। हैज डन ओके इन ओके। दैट टाइम पीरियड। और इसमें कोई फंडिंग का भी होता है? जैसे एजुकेशन पे बच्चा जा रहा है तो कोई फंड भी शो करने पड़ते हैं? 100% students should have 11,000 euro in their account, in their saving account। ओके, मतलब वही 12 लाख के करीब फंड हो गए। हाँ जी, और वो फंड जो होते हैं फीस के अलावा होते हैं, जो फीस बच्चा पे फीस के कर। अलावा। ओके, फीस के अलावा उसमें जी, कोई पुराने भी चाहिए या नए फंड ही चाहिए? 28 years old will work। ओके, मतलब जैसे यूके में है। 100% सर। ओके ओके। जी तो अगर बच्चा यहाँ पे जाता है तो आप क्या हेल्प करते हो बच्चे को? मतलब जैसे बच्चे ने, किसी ने माल्टा अप्लाई करना है जी तो उसको सपोर्ट चाहिए, तो उसमें आप क्या सपोर्ट करोगे बच्चे की? सर, हमारी स्पेशलिटी ये है कि सबसे पहले जब हम बच्चे को कहते हैं कि अपना सीवी शेयर कर दो हमारे साथ, ओके उसका सीवी देख के उसकी कोर्स सिलेक्शन होती है। ओके फिर स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जाता है। ओके। उसको इंटरव्यू के लिए अगर स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका 2 से 3 साल का स्टडी गैप हो गया है, बिल्कुल। उनका इंग्लिश का फ्लो नहीं बनता। हम्म। राइट, तो हम पहले उनको इंग्लिश की लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके। ठीक है, वो हम आपको सपोर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हम्म। ठीक है, उसमें स्टूडेंट के इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जैसे स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाता है, फिर उसका कॉलेज के साथ इंटरव्यू होता है। ओके कॉलेज की इंटरव्यू पास करने के बाद उसकी जो है ऑफर लेटर अप्लाई होती है। देन स्टूडेंट नीड टू पे द एप्लीकेशन फीस एंड उसका ऑफर लेटर आता है। ओके। ऑफर लेटर के बाद उसने अपनी ट्यूशन फीस जो है वो सबमिट करनी है। ट्यूशन फीस सबमिट करके फिर उसका जो फाइलिंग का प्रोसेस है सारा, राइट, वो होता है। स्टूडेंट ने खुद ही जाना है वीएफएस में, खुद ही अपनी फाइल सबमिट करनी है। बिल्कुल। ठीक है, सो 60 to 70 डेज का नॉर्मली एम्बेसी का जो है टाइम पीरियड होता है वीजा Okay. के लिए। और इसमें जैसे माल्टा, कोई बच्चा माल्टा अप्लाई कर रहा है, जी, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा अप्लाई कर सकता है, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, एनी स्ट्रीम, मेडिकल, नॉन मेडिकल? एनी स्ट्रीम स्टूडेंट कैन अप्लाई, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा अप्लाई एवरी कोर्स वी डू हैव। कर। ओके ओके। जी तो माल्टा एक शैनिकन का पार्ट है और बहुत अच्छी कंट्री है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस कंट्री के बारे में रिसर्च कर रखी होगी, बट फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है कि माल्टा क्यों जाना चाहिए और माल्टा में क्या बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों को, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें हम आपके साथ कोमल मैम का कांटेक्ट भी शेयर कर देंगे। अगर डायरेक्ट आपने कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। और हम आने वाले टाइम में आपके सामने माल्टा से रिलेटेड और भी वीडियो लेके आते रहेंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर।